आज हम सब के लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि इस मंच पर वो दो नौजवान बैठे हैं जो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं, और जो अपने आप में जिन्होंने लगातार मोदी सरकार और हिटलर शाही की जो नीति हैं जो 7 साल से इस देश में चल रही हैं, अपने अपने तरीके से युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए उन्होंने एक व्यापक संघर्ष किया। हमारे इन साथियों को ये लगा कि ये आवाज तब और बुलंद हो पाएगी जब ये आवाज कांग्रेस और राहुल गांधी जी की आवाज में मिलकर 1 और 1 11 की आवाज बन जाएगी। और मैं आभारी हूं हमारे साथी कन्हैया कुमार जी, हमारे साथी जिग्नेश मेवानी जी, और मेरे एक और मित्र जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं गुजरात प्रदेश के, हार्दिक पटेल जी, वो भी उनके साथ उपस्थित हैं। मैं आप सबका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और बगैर किसी विलंब के सबसे पहले महासचिव संगठन उनसे अनुरोध करूंगा कि वो संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे और उसके बाद फिर हम आप लोगों को कहेंगे कि वो आप अपनी बात यहां पर रखें। आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी। Dear friends, this is one of the happiest moments for all of us to be here in the ICC office to receive Kanhaiya Kumar ji and Jignesh Mevani ji and other colleagues. Already Randeep ji told you that Kanhaiya Kumar actually is a symbol of fighting freedom of expressions in this country. The way in which he fought against the fundamentalism throughout his student education time, the country witnessed. So with that type of young personality is joining Congress will enthusiast entire cadre of the Congress party all over India. So we are very much thankful to Kanhaiya Kumar on behalf of All India Congress Committee. We are wholeheartedly welcoming Kanhaiya Kumar ji to this grand old party. Of course, it's indeed happiness. Jignesh ji is also here, who is also fighting for the same cause which Congress is fighting. Jignesh ji, through his activities, through his interventions, already proved that he also believed the Congress ideology to carry everybody for the future. Other colleagues are all here who are worked with Kanhaiya Kumar ji and Jignesh ji. Definitely, it will give a very strong message to the country that young generation, those who are fighting for the needy people, poor people, those who are fighting for freedom, those who are fighting for non-violence, they must enthusiast through this
entry of our young leaders to the Congress party. Honorable former Congress President Rahul Gandhi already met these young leaders, and he also expressed his happiness to these people for them being in the Congress party. Definitely, coming days, we will look forward with work with Kanhaiya Kumar ji and Jignesh ji, others, to defeat the fundamental fascist forces of the country which is ruling in India. Thank you. Thank you. Before I request Kanhaiya ji and Jignesh ji, may I request our in charge of Bihar, Bhakta Charan Das ji, to say a few words. After this. Yeah. Just wait for 2 minutes. Respected Venugopal ji, Shirwala ji, Bansal ji, Nitish ji, all PCC President Bihar and all other friends. चलो, तो आप देख रहे हैं भक्त चरण दास इस वक्त बोल रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं, बिहार के प्रभारी हैं। सीधे मैं इस वक्त अपने सहयोगी धीरेन्द्र, वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर के पास चलता हूं। धीरेन्द्र, कन्हैया कुमार का ज्वाइन करना ये कांग्रेस के लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव न्यूज साबित होगा, या बीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से इतना हमला कर देगी कि कांग्रेस शायद उस असहज स्थिति को संभाल ना पाए? आपका क्या कैलकुलेशन है? हिंदी पट्टी के लिए जिनके लिए लाने की कोशिश की गई कन्हैया कुमार को, वहां इस समय कांग्रेस इस स्थिति में भी नहीं है कि वो कहीं किसी को अपने स्टेक के तौर पर बता सके। मुझे लगता है कि इसके जो कन्हैया कुमार का हाल का आना है वो आज मौजूदा समय में ज़रूर कांग्रेस को नुकसान ज़रूर पहुंचा सकता है, क्योंकि हालांकि वो किसी भी तरह, हम लोग बिहार से या फिर यूपी के चुनाव में चूंकि इन दोनों को जब शामिल किया जा रहा था तो सबसे पहला सवाल था कि आखिर इनका सबसे पहला इस्तेमाल क्या किया जाएगा। आप उसको उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो जिस जातिगत समीकरण के सहारे कन्हैया कुमार वहां घुसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब वो बेगूसराय से लड़े थे तो उसी समय यह तय हो गया था कि उनकी राजनीति का जातीय समीकरण के साथ साधा जाना ही एकमात्र उनके हिंदी बेल्ट की एक मजबूरी भी है। तो वो यहां जब लड़ने जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो यहां अपनी उस छवि से छुटकारा पा सकेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आप देखें राष्ट्रवाद, नॉन राष्ट्रवाद और इन तमाम चीज़ों पर ही केंद्रित हो रहा है। जब योगी आदित्यनाथ उस पूरे चुनाव की पिच को वहां ले जा रहे हैं जहां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में खड़े होंगे, तो वहां कन्हैया कुमार बहुत ज़्यादा कुछ कांग्रेस को दे पाएंगे, मुझे यहां संदेह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनको अभी अपने लिए कैंडिडेट ढूंढने भारी है। आप देख रहे हैं दीपक जी लगातार कि किस तरह से दौरे की तय होता है कि 2 अक्टूबर से शुरुआत होगी किसी रैली की, फिर वो 9 अक्टूबर को चली जाती है, क्योंकि भीड़ भी जुटा नहीं पाते। लेकिन एक कांग्रेस के लिए ये जरूर बूस्टअप की बात होगी, क्योंकि अभी हमने देखा 2 दिन पहले ही किस तरह से जितिन प्रसाद हैं वो एक चेहरे के तौर पर, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बीजेपी के एक मंत्रिमंडल में शामिल हुए। तो मुझे लगता है कांग्रेस सिर्फ अपने लिए और कुछ देर के लिए वो सुर्खियों के लिए जरूर कन्हैया का इस्तेमाल हो सकता है, और जिग्नेश मेवाणी मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा चुनावी परिदृश्य में बहुत ज्यादा यूपी में वो भूमिका निभाने की स्थिति में होंगे, क्योंकि वहां कहीं भी। जी मधुरेंद्र, मुझे बताइए, कन्हैया कुमार उत्तर प्रदेश जहां पे राष्ट्रवाद की पिच होगी, जहां पर एंटी तालिबान पिच होगी, जहां पर एंटी पाकिस्तान पिच होगी, वहां पर कन्हैया कुमार कांग्रेस के लिए कहीं काउंटर प्रोडक्टिव ना बन जाए? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है मधुरेंद्र मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। धीरेन्द्र, आपसे यही सवाल पूछता हूं, काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं बन जाएंगे? जब राष्ट्रवाद की पिच होगी, जब देशभक्ति की पिच होगी, तो कन्हैया कुमार को बीजेपी एसोसिएट करती है। आज उनकी टिप्पणी भी आ गई कि भाई टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को कांग्रेस अब शामिल कर रही है।
देखिए, कांग्रेस को वहां कन्हैया कुमार कोई भी मदद नहीं पहुंचा पाएंगे, बल्कि कांग्रेस पर बोझ भी हो सकते हैं वहां वाकई, क्योंकि कन्हैया कुमार की एक छवि जो है बनाई जा चुकी है या बनी हुई है, उसमें वो बीजेपी के सबसे आसान जो है निशाने पर होंगे, सबसे ज्यादा हमला उन पर किया जाएगा और पूरा फोकस एक दूसरे तरीके से भी मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा उनको फायदा नहीं देगा। दीपक जी, आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी को सामने रखकर ये पूरा चुनाव कांग्रेस अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जब वहां कन्हैया कुमार को आप लेकर जाते हैं तो फोकस भी शिफ्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इससे बहुत कुछ फायदा नहीं मिल रहा और बीजेपी को आसानी से हमला करने का एक और मौका मिल जाएगा कांग्रेस पर। और ये इतना बड़ा चीज है, ये 2016 का पूरा अगर हम देखेंगे पूरा नैरेटिव टुकड़े टुकड़े गैंग पर घूमता है और उस गैंग का अगर कोई चेहरे के तौर पर, अगर मैं उसको पॉलिटिकल तौर पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर एक उसका चेहरे के तौर पर अगर हम उस पूरे उस मूवमेंट की बात करें या उस पर उस चुनावी नारे की बात करें तो उसमें कन्हैया कुमार का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है और सबसे आसानी से जहन में आने वाला चेहरा है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी इसमें कोई मौका नहीं छोड़ेगी कांग्रेस को इसके साथ जोड़ने से और कन्हैया के सहारे कांग्रेस पर जो बची कुची कांग्रेस है उस पर हमला बोलने के। इसीलिए मुझे लगता है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है यूपी में, उससे कोई ताकत इस चुनाव में नहीं मिलने जा रही है। ठीक है, जिग्नेश मेवाणी को कांग्रेस का पट्टा पहनाते हुए केसी वेणुगोपाल, और यही पट्टा जो अंग वस्त्रम होता है जिसको हम कहते हैं, वो अब पवन कुमार बंसल जो कि कांग्रेस के कोषाध्यक्ष है वो पहना रहे हैं, भक्त चरण दास जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो पहना रहे हैं, और कन्हैया कुमार को आप देख रहे हैं अब बुके दिया जा रहा है कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी को। सीधे मैं चलता हूं इस वक्त मधुरेंद्र के पास। मधुरेंद्र अगर मेरे साथ जुड़ गए हैं तो मधुरेंद्र, मैं जानना चाहता हूं कन्हैया कुमार उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस का फायदा करेंगे या नुकसान? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो नुकसान करेंगे, क्योंकि जिस स्लोगन को बीजेपी ने अभी से उछालना शुरू कर दिया है, यूथ बीजेपी ने दिल्ली के तमाम हिस्सों में पोस्टर भी लगा दिया है, वो दरअसल उस नैरेटिव को शूट नहीं करता जो कांग्रेस चाहती है। क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग के सबसे बड़े पोस्टर बॉय के तौर पर स्थापित चेहरे के रूप में देखें तो कन्हैया कुमार ही दिखाई देते हैं। और जाहिर है कि राष्ट्रवाद के बनाम जिस तरह की लड़ाई यूपी के ज़मीन पर होगी, उस स्थान पर अगर कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट कांग्रेस करेगी तो उसका नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। आप अगर कन्हैया कुमार के बैकग्राउंड में भी जाकर देखिए तो 2019 के चुनाव में जिस तरह से कन्हैया कुमार पूरी तरह से बेचैन थे कि आरजेडी में शामिल हो जाएं, लेकिन आरजेडी ने उन्हें अपने पार्टी में जगह नहीं दी थी और फिर जो है वो सीपीआई में जाके उन्होंने अपनी जगह बनाने की कोशिश की। मतलब मैं रोकूंगा आपको, कन्हैया कुमार की पीसी शुरू हो रही है, वो देख लेते हैं पहले। सबसे पहले इस संवाददाता सम्मेलन में आए हुए मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का, और मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जगह की कमी के चलते कमरे में आ नहीं पाए हैं लेकिन सुन रहे हैं बाहर खिड़कियों से। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मंच पर उपस्थित एआईसीसी ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी वेणु जी, जनरल सेक्रेटरी सुरजेवाला जी, एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन नितिन राउत जी, बिहार के प्रभारी भक्त चरण दास जी, बिहार के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी और कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर पवन बंसल जी, हमारे युवा साथी और गुजरात कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भाई हार्दिक पटेल जी, और हमारे आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर हर घड़ी हमारा साथ देने वाले हमारे साथी बडगाम से निर्दलीय विधायक साथी जिग्नेश मेवाणी जी, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अपने पत्रकार साथियों से कुछ चीज़ों को लेकर मुखातिब हूं। उससे पहले आज ये एक ऐतिहासिक दिन है। आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है। लोग शहीद होते हैं, भगत सिंह शहीद आजम हैं। शहीद आजम इसलिए हैं कि आज हम लोग जहां माल्यार्पण करने के लिए गए थे, शहीद पार्क, वो शहीद पार्क एक ऐतिहासिक पार्क है। वो हिस्सा है फिरोज शाह कोटला फोर्ट का, जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी की अध्यक्षता में
हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की गुप्त मीटिंग हो रही थी। अंग्रेजों के ज़माने में क्रांतिकारी छुपकर मीटिंग किया करते थे। नौजवान तरुण भगत सिंह एक प्रपोजल लेकर के आए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी होना चाहिए। यह ऐतिहासिक क्षण, वो ऐतिहासिक भूमि और हमारे युवाओं के आइकन शहीद आजम भगत सिंह को हम अपना नमन प्रस्तुत करते हैं। आज एक दुखद घटना भी हमारे जिले में हुई है। वज्रपात के चलते 2 बच्चियों का निधन हो गया है। मैं इस मंच से उनके प्रति शोक व्यक्त करता हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सूचना क्रांति के इस दौर में हमसे ज़्यादा मालूम हमारे पत्रकार साथियों को होता है। तो बेहतर ये होगा कि आप सवाल पूछें, मैं आपका जवाब दूं। लेकिन आप सवाल कहाँ से पूछेंगे और आपके मन में कौन से सवाल चल रहे हैं, इसका थोड़ा सा अंदेशा है, मुझे थोड़ा अंदाजा भी है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने पत्रकारिता की उस मिसाल को जिंदा रखा है कि कम से कम विपक्ष से तो सवाल करते हैं ना, ताकि इस देश को याद रहे कि पत्रकारों का काम है सवाल पूछना। तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। जितना सवाल आप पूछना चाहते हैं पूछिएगा, बारी बारी से पूछिएगा, सारे सवालों का जवाब दूंगा। बस एक सवाल का जवाब जो मुझे लगता है कि आप सबके मन में होगा कि आप कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन किए हैं, उस सवाल का जवाब दे करके मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ मुखातिब होऊंगा, माइक उनको समर्पित करूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे ये महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। वो इस देश की सत्ता पे न सिर्फ काबिज हुए हैं, इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, इसका मूल्य, इसका इतिहास, इसका वर्तमान और इसका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो सोच है, उस सोच के बारे में आप अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो हमने ये चुनाव किया है। हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर दे करके बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। और ये बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, देश में प्रधानमंत्री अब भी हैं, देश में प्रधानमंत्री इससे पहले भी थे, देश में आगे भी प्रधानमंत्री होते रहेंगे। लेकिन आज जब हम लोग श्री राहुल गांधी जी के उपस्थिति में फॉर्मली कांग्रेस पार्टी का फॉर्म भर रहे थे, तो साथी जिग्नेश ने संविधान की कॉपी दी और हमने उनको भगत सिंह, गांधी और अंबेडकर की तस्वीर प्रस्तुत किया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि आज इस देश को भगत सिंह की वीरता की जरूरत है, भगत सिंह के साहस की जरूरत है। आज इस देश को अंबेडकर की समानता की जरूरत है और आज इस देश को गांधी की एकता की जरूरत है। गांधी जब कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये गांधी की एकता है। जब अंबेडकर कहते हैं कि किसी भी समाज का मूल्यांकन वहां महिलाओं की क्या स्थिति है इस बात से होगा, तब वो समानता की वकालत कर रहे होते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी एक समुदाय के नेता थे।
कांग्रेस पार्टी ने, संविधान सभा ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने की जिम्मेवारी दी और उस संविधान के प्रियम्बल में यह लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इसमें समानता न्याय के मूल्य निहित हैं। और जब भगत सिंह कहते हैं कि आप व्यक्ति को कुचल सकते हैं, विचारों को नहीं, आप बम और पिस्तौल से कभी इनकलाब नहीं ला सकते हैं, उस साहस की जरूरत है हमको। मुझे नहीं लगता है, मेरे बहुत सारे राजनीतिक दोस्तों को यह लगता है, मुझे लगता है कि यह देश 47 से पहले वाली स्थिति में चली गई है। लेकिन जिनको लड़ना है उनके पॉलिटिकल इमेजिनेशन में आज भी हर कोई अपना अपना शोरूम बचाने के चक्कर में है। रे भाई, मॉल में आग लग गया है, दुकान बचाओगे? बस्ती में जब आग लग जाती है ना, बेडरूम की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज हम इस मुहाने पे खड़े हैं कि इस देश के भीतर भारतीय होने की जो पहचान है, जिसमें बुद्ध निहित हैं, जिसमें कबीर निहित हैं, जिसमें नानक निहित हैं, जिसमें हर बार हर दौर में सत्ता से सवाल पूछने का साहस होता है, उस भारतीय चिंतन परंपरा को बचाने की जरूरत है। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गांधी की विरासत को लेकर के आगे चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सरोजनी नायडू के विचारों को लेकर के चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अम्बेडकर, नेहरू, अशफाक उल्लाह खान, शहीद आजम भगत सिंह और मौलाना अबुल कलाम आजाद के रास्तों पे चलेगा। हम जब भी समानता और बराबरी की बात करते हैं, यह कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, यह भारतीय होने का इतिहास है। और इस भारतीय होने के इतिहास को अपने आप में यदि कोई समेटे हुए है तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। और जो लोग कह रहे हैं विपक्ष कमजोर हो गया है, यह सिर्फ विपक्ष के लिए चिंता की बात नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, कोई शास्त्र, कोई किताब उठा करके देख लीजिए। जब विपक्ष कमजोर हो जाता है, सत्ता तानाशाही रुख अख्तियार कर लेती है। इसीलिए देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, मैं कोई गुनागणित नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे यह बात सीधे तौर पे समझ में आ रही है कि देश के लोकसभा में 545 सीट हैं, 200 लगभग सीट ऐसे हैं जहां भाजपा के सामने कांग्रेस के अलावे कोई विकल्प नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी जिम्मेवारी सिर्फ एक पार्टी के लिए है, लेकिन जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी। इसीलिए, और मैं जब यहां बैठा हुआ हूं, मेरे इतिहास को, मेरे वर्तमान को लोग देख रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, वो आएंगे, उनका जवाब मैं दूंगा। लेकिन यह जो ऐतिहासिक जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी से मैं अपना मुंह नहीं मोड़ सकता हूं। मैं जहां पैदा हुआ, जिस पार्टी में पला बढ़ा, उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। उसने मुझे सिखाया, पढ़ाया, लड़ने का जज्बा दिया है। लेकिन उस पार्टी के साथ साथ मैं उन लाखों करोड़ों लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जब हम लोगों के ऊपर अनावश्यक आरोप मढ़े जाते हैं तो अपने दोस्तों से लड़ रहे थे, अपने घरों में डिनर टेबल पर लड़ रहे थे। लोगों की दोस्तियां टूट गई हम लोगों के आंदोलन के समर्थन में, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लोगों के डिवोर्स तक हो गए। ये जो देश में एक वैचारिक संघर्ष छिड़ा है, उस वैचारिक संघर्ष को कांग्रेस पार्टी ही नेतृत्व दे सकती है, यह हमारा भरोसा है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारे देश के जो लाखों करोड़ों नौजवान आपके माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे भी मैं आग्रह कहता हूं, दीवार पर बैठकर टुकुर टुकुर मुंह ताकने का वक्त नहीं है। ये अर्जेंसी का टाइम है, और इस अर्जेंसी के टाइम पे दीवार पे बैठ करके दायां जाएं कि बायां जाएं, ये मत सोचिए। जब आप जंग में होते हैं तो आपके पास जो अवेलेबल चीजें होती हैं, आप उससे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी
एक बड़ी जहाज है। अगर कांग्रेस पार्टी बचेगी तो हमारा मानना है इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों की आकांक्षाएं बचेंगी, गांधी की मीमांसा बचेगी, भगत सिंह के सपनों का भारत बचेगा और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समानता का भारत का निर्माण संभव हो पाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस पार्टी से जुड़ा हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को एक लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, आजादी के साथ, अपनी पूरी मुखरता के साथ सत्ता से सवाल पूछना और लोगों के हक के लिए लड़ना भिड़ना संघर्ष करने में हमारे साथी रहेंगे, हमारे सहयोगी रहेंगे। और ये परिवार संघ परिवार नहीं, वो क्या परिवार जो परिवार छोड़कर परिवार बनाना पड़े, वो परिवार जो आपको परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहता है, कहता है कि अपने परिवार में रहिए। अरे महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी को लेकर के अंग्रेजों से लड़ गए, बताइए इनको अपना घर छोड़ना पड़ा, कोई जरूरी है क्या? घर परिवार के साथ रहना है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी अपने परिवार के साथ रहते थे। आप जितने बड़े लोग हैं उनका इतिहास उठा करके देख लीजिए, सब लोग अपने परिवार के साथ रहते थे। वो परिवार छोड़ करके बनने वाला परिवार नहीं। न्याय बराबरी और संघर्ष के लिए इस परिवार में मैं शामिल हुआ हूं। सभी सदस्यों के प्रति देश के अंदर फैले हुए लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को अपना आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मैं अब जिग्नेश भाई से प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी बात कहेंगे। जिग्नेश जी आ जाएगा वो। धन्यवाद। सबसे पहले तो केसी वेणुगोपाल साहब। तो कन्हैया कुमार ने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि वो संघ परिवार नहीं, कांग्रेस परिवार के अंदर शामिल हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब विपक्ष कमजोर होता है तो तानाशाही शुरू हो जाती है। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस बहुत बड़ा जहाज है और जब बड़ा जहाज डूबता है तो छोटी छोटी नावें भी डूब जाती हैं। तो क्या खत्म हो रही कांग्रेस को कन्हैया बचाएंगे? कन्हैया को सुनकर कम से कम इस बात के इंडिकेशन मिले कि कन्हैया यही कहने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल जिग्नेश मेवाणी बोल रहे हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी, धीरेन्द्र जुड़े हुए हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी। मेरे साथ इस वक्त उमाकांत दखेड़ा जी जुड़े हुए हैं। उमाकांत जी, उन्होंने कहा कि अगर बड़ा जहाज खत्म होता है तो धीरे धीरे छोटी नौकाएं भी खत्म हो जाती हैं। तो क्या कन्हैया आ गए हैं, अब कांग्रेस को बचाएंगे? देखिए कांग्रेस जो कुमार ने जो बोला है, कन्हैया कुमार की राजनीति को पता है उनके पीछे क्या है और तरह की आए हैं विवादों से वो घिरे। एक बात है उमाकांत भाई, आपका कनेक्शन बहुत कमजोर है। मैं एक बार चाहूंगा कि आप फिर से रिकनेक्ट कर लें इसको, क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल कट कट कर आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। यही सवाल लेकर मधुरेंद्र के पास चलता हूं जब तक उमाकांत भाई फिर से जुड़ते हैं। मधुरेंद्र, उन्होंने कहा कि जहाज जो है बहुत बड़ा जहाज है कांग्रेस, अगर बड़ा जहाज डूब जाता है तो छोटी छोटी नौकाएं भी डूब जाती हैं। तो और अब मैं आ गया हूं, तो क्या कन्हैया बचाएंगे इस कांग्रेस को? जिस तरह से कन्हैया अपने को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनके शुरुआती भाषण से साफ लग रहा है कि वो कांग्रेस के खेवनहार बनकर आए हैं और खुद को उसी तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस को एक बड़ा जहाज कहना, ये बताना कि ये कांग्रेस को बचाने की जिम्मेदारी सबकी जिम्मेदारी है, और साथ ही ये बताना कि मैं क्यों कांग्रेस में आया हूँ। ऐसा लगता है कि वो अपने आप को कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे कांग्रेस की मौजूदा स्थिति जो है उससे कांग्रेस को निकालने का सारा दारोमदार जो है पार्टी ने उनके कंधों पर जैसे दे दिया हो। तो इस वक्त उनके शुरुआती भाषण में भले ही इतिहास, भूगोल, संविधान और जाहिर तौर पर जो आइकन्स हैं इंडियन हिस्ट्री के और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के या फिर भारत के नवनिर्माण के, उनको वो सौधारण प्रस्तुत तो कर रहे हैं, लेकिन जब उनके अपने जिम्मेदारी की बारी आ रही है तो कांग्रेस को एक बड़ा जहाज और खुद को उससे आगे बढ़ाने या यूं कहें कि बचाने की बात कर रहे हैं। तो एक हम कह सकते हैं कि उनकी तरफ से स्पष्टता है, लेकिन क्या कांग्रेस इस उनके बात पर यकीन करती है या कांग्रेस से उनके बात से कितना इत्तेफाक रखती है, ये एक बड़ी बात है जो कांग्रेस से जाननी होगी। ठीक है, विपक्ष कमजोर है। क्या धीरेन्द्र, आपको भी ऐसा ही लगता है कि कन्हैया जो बोल रहे हैं उनकी बातों से ये टच निकल रहा है कि भाई विपक्ष बहुत कमजोर है, कांग्रेस का बचना बहुत जरूरी है, इसलिए अब मैं आ गया हूं? देखिए, अगर आप देखेंगे इस पूरे भाषण को तो एक प्रेशर में दिखाई देते हैं। वो पूरा
उस भाषण में जो नेचुरली उनको बोलते हुए हम लोगों ने सुना है, कन्हैया को लगातार एक प्रेशर है जिसमें वो इस पूरी सिचुएशंस को ये बता रहे हैं कि इस पूरी सिचुएशंस क्यों कितनी ग्रेव सिचुएशंस है, पूरी तरह से एक राष्ट्र 47 से पहले की स्थिति में चला गया है और उसके बाद वो एक पर्सनल अटैक करने से भी नहीं चूक रहे हैं। यानी एक ही समय में एक ही सब्जी में वो तमाम मसाले मिला देना चाहते हैं, मीठा भी डाल देना चाहते हैं। उस तरह से मुझे इस पूरे भाषण को मैं देख रहा हूं, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी उनको ले रही है वो अभी एक पार्टी, एक सांसद, एक सीट पर चुनाव लड़ने वाले हारे हुए हैं, मतलब एक सांसदी के लिए भी वो हारे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी आज भी 20% वोटर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो मुझे लगता है कन्हैया कुछ ज़्यादा ही अपने आप को यहाँ आंकते हुए दिख रहे हैं और एक पार्टी है कांग्रेस जो उनको अपने में शामिल कर रही है, कन्हैया में समाहित नहीं हो रही है, कन्हैया उस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुझे लगता है कन्हैया ने कुछ ज़्यादा ही आकलन किया है। जब मैं सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों ने भी अभी आते हुए दिन इस राग को सही से नहीं लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लंबा भाषण दिया है जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी वहाँ जो मंच पर बैठे हुए लोग हैं उनको भी शायद असहज कर रहा होगा। उनके कई बातें, चूँकि उन्होंने परिवार के लिए बात की, उन्होंने ये भी बताने के लिए कहा कि मैं क्यों आया हूँ, तो उस दौरान फिर कांग्रेस को उन्होंने घेरने की कोशिश की। तो मुझे लगता है दीपक जी कि ये मतलब कमोबेश कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज नहीं कहा, बाकी सब कुछ कह दिया उन्होंने। अगर मैं यही कहूँ, सीधे तौर पर उन्होंने यही कहा है कि वो एक उसको खींच कर जहाज को बाहर ले आएंगे, वो एकदम उसकी तरह जो पूरी पृथ्वी को लेकर ऊपर हरक्यूलिस चल रहा है। तो इस समय वो कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को लेकर अपने कंधे पर वो आगे जाएं, लेकिन कांग्रेस में बहुत सारे लोगों को इस भाषण से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं होगा। मुझे आपको क्या लगता है, ऐसा नहीं लगा कि वो सिर्फ इस बात को कहने से चूक गए कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, बाकी सब कुछ कह गए वो? देखिए, उनकी बातों से आशय आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि जिस बात की चर्चा भारत में होती है दरअसल कांग्रेस को लेकर और एक डूबते जहाज को लेकर, तो जाहिर तौर पर जहाज के तौर पर ही वो भी कांग्रेस को देख रहे हैं। ये अपने आप में साबित करता है कि कांग्रेस को देखने का नज़रिया कन्हैया की आंखों से क्या है। इस बात को बार बार जस्टिफाई करना कि मैं क्यों कांग्रेस में आया हूँ, इस बात को बार बार जस्टिफाई करना कि मेरे से सवाल क्या होंगे और सवाल के तौर पर सिर्फ परिवारवाद पर जाकर केंद्रित हो जाना, तो ये सब बातें बतलाती है कि कांग्रेस को लेकर दरअसल कन्हैया का नज़रिया क्या है और किन मजबूरियों में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, या यूं कहें कि किन मजबूरियों में कांग्रेस ने कन्हैया का दामन थामा है। ठीक है, मुझे लगा कि वो अपने आप से बिल्कुल गदगद दिखे, उनको लगा कि उनका जो रोल होने वाला है बहुत ग्रांड होने वाला है, बहुत विशाल होने वाला है। बहस जारी रहेगी, सुनेंगे कन्हैया से क्या सवाल जवाब होते हैं, क्या जेएनयू विवादित नारेबाजी के बारे में उनसे कुछ सवाल होता है और क्या कहते हैं कन्हैया, देखेंगे ब्रेक के बाद। तो दो बड़ी खबर इस वक्त की। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ये कांग्रेस हाईकमान के लिए बड़ा झटका है। लेकिन इस बीच सीधे चलते हैं कन्हैया कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन की है। 24 अखबार अच्छा हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे? हमने वो कहानी सुनी है बचपन में, आपने भी सुना होगा। जंगल में आग लगी, एक कोयल अपने चोंच में पानी भर करके जंगल की आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। जंगल की आग नहीं बुझी, या बुझनी होगी बुझ जाएगी। कम से कम कोयल का वह ऐतिहासिक प्रयास जो है वो इतिहास याद रखेगा। और ये जो आप कह रहे हैं ना, डूबती हुई नाव, देखिए कभी कभी ना इंसान को भ्रम होता है, जैसे टिड्डे को भ्रम होता है कि वो अपने पांव से आसमान टिका रखा है। हमको ऐसा कोई भ्रम नहीं है। मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। जब आप जुड़ेंगे, हम जुड़ेंगे, इस देश के संविधान में आइडिया ऑफ इंडिया में भरोसा करने वाले लोग जो हैं, जिसको हम कहते हैं गांधी के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं भगत सिंह के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं बिरसा मुंडा के सपनों का भारत, सावित्रीबाई फूले के सपनों का भारत, श्री कृष्ण सिंह के सपनों का भारत, जगजीवन राम के सपनों का भारत, मौलाना अबुल कलाम आजाद के सपनों का भारत, उस भारत को बचाने की बात मैं कर रहा हूं। और सियासत, मैं बार बार कहता हूं, अगर सियासत सही होगी तो गलत लोग जो सत्ता पे काबिज है ना, मुझे भारत के लोगों पे बहुत भरोसा है। अरे हैं हम लोग थोड़ा सा आलसी, लेकिन जब आ गए ना अपने पे, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया था, जब से भारत के लोग अपने पे आ गए ना, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का जब नारा महात्मा गांधी ने दिया था, तो अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा था। और उस वक्त जो लोग अंग्रेज से पेंशन ले रहे थे, माफी मांग रहे थे, वो आज एनसीईआरटी की किताब बदल रहे हैं कि अपना नाम भी हम बीड़ों में लिखवा लें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस इतिहास को, उस चिंतन परंपरा को बचाने की जरूरत है।
पार्टी अगर उस सिद्धांत पे चलेगी, संविधान के प्रियम्बल को रक्षा करने की कोशिश करेगी, पार्टी भी बचेगी और पार्टी सत्ता में भी आएगी। ऐसा मेरा उम्मीद है, ऐसे मेरी आशा है। जैनेंद्र फ्रॉम एबीपी, कैन यू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड आस्क। हाँ, पूछिए जरा। एक सवाल पूछिए। हम एक आग्रह करें, आप लोग न लड़ाई नहीं लगवाइए हमारे दोस्त के बीच में। भोरे से जो है ट्विटर पे आप लोग क्या क्या जो चला दिए हैं, लोग हमको पूछ रहा है कि जिग्नेश का नाम काहे नहीं ट्रेंड कर रहा है। मैं आपसे ही आग्रह कर रहा हूँ, हम ना अलग अलग लोग नहीं हैं, यह मंच आपस में बटा हुआ नहीं है, तो सवाल जो है सारा तोप का गोला जो है हमारे तरफ ही नहीं हो, मंच के तरफ मुखातिब हो, मैं भी जवाब दे दूंगा। यस, जैनेंद्र जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ, सुन रहे हैं। बड़ा जैनेंद्र भाई बड़ा वैचारिक सवाल पूछे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र भाई। एक तो देखिए, हमारी जो ये नई पार्टी है, इस पार्टी के जो संगठन के महासचिव हैं वो केरल से ही हैं। इनसे आप चाहें तो अकेले में भी पूछ लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हमने एक शब्द नहीं बोला था। हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी बोले हैं, लेकिन केरल के विधानसभा चुनाव में नहीं, जेएनयू के प्रेसिडेंशियल स्पीच में बोले थे। देखिए, हमको हमारा इतिहास पता है और हम यही कहते हैं, इतिहास को तोड़ा और मरोड़ा नहीं जा सकता है। इतिहास इतिहास होता है। इतिहास कोई कागज पे लिखे हुए शब्द होते हैं कि आप उसको जो है इरेजर से मिटा दीजिएगा। केरल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं बोले थे। आपने पूछा कि कब आपको ऐसा महसूस हुआ। देखिए, महसूस तो मुझे राजनीति में आए हुए 18 साल हो गए हैं और मैंने हमेशा ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं इस देश की जो राजनीतिक विरासत है वो भटक गई है। भूल भुलैया नहीं होता है, राइट लेफ्ट सेंटर घूमने लगा है और पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअल आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग कहाँ है, उसके थ्रेड्स कहाँ पे हैं। तो मैं जैनेंद्र भाई, आपने वैचारिक सवाल पूछा है, एक ऐतिहासिक तथ्य आपसे साझा करता हूं। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर था कल तक। वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 1936 में बना और उस इतिहास जाकर के देख लीजिएगा। उसका जो इनॉग्रल सेशन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का उसमें भाषण हुआ था और उस वक्त देश के जितने भी नौजवान थे, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है हमारे कुछ साथियों को, लेकिन अपने विद्यार्थी के होने के जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हुए थे, बाद में निकाल दिया गया था। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जो छात्रों का संघर्ष हो रहा था, सभी विचारधारा के लोग उसके सदस्य थे। और आपने जो वैचारिक सवाल पूछा कि आपको लेफ्ट के भविष्य के रूप में देखा जा रहा है, कौन कह रहा है कि लेफ्ट का भविष्य खराब हो गया है? व्यक्ति आते हैं और जाते हैं, संगठन हमेशा व्यक्ति से बड़ा होता है। व्यक्ति की अपनी एक भूमिका होती है, उस भूमिका को वो अपनी क्षमता से निभाने की कोशिश करता है। मैं आपको बता दूं, जहां जिस पार्टी से आप मेरा संबंध जोड़ रहे हैं, मैं वहां पैदा हुआ हूं। मेरे भीतर सोचने, समझने, लड़ने की जो क्षमता है, ये उसके ट्रेनिंग का हिस्सा है और मुझे इस बात का गर्व है। लेकिन वहां जो लड़ने का तरीका है और जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं, मुझे लगता है आज जो देश की स्थिति है उसमें उसके स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है और जो वैचारिक संकीर्णता है उसको तोड़ने की जरूरत है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं अपने कई साथियों से पूछा कि क्या भगत सिंह की जयंती देश के सभी संगठनों को नहीं मनाना चाहिए, और क्या गांधी की तस्वीर सभी संगठनों के कार्यालय में नहीं होना चाहिए? ये हमारा इतिहास है, ये हमारी विरासत है। कुछ लोग बहुत चालाकी से विचारधारा की खोल में
यह जो हमारी ऐतिहासिक विरासत और परंपरा है, इसको आपस में उलझाने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा पॉपुलर डिबेट है मीडियम और मीन्स का, साध्य और साधन का, हिंसा और अहिंसा का। तो मैं आपके सामने इस सदन के समक्ष यह बात कहता हूं, जब भगत सिंह कहते हैं कि बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं ला सकता है, मतलब भगत सिंह हिंसा का निषेध कर रहे हैं, वायलेंस को निगेट कर रहे हैं। और जब बापू कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं करो या मरो, मतलब वो व्यक्ति के ऊपर होने वाली हिंसा को स्वीकार कर रहे हैं और अहिंसा को निगेट कर रहे हैं। देश की अर्जेंसी क्या है, इस बात को समझिए। और देश की अर्जेंसी ये है कि आप पैदा कहीं भी हुए हों, अगर गांव में आग लगी है, आप अपने दरवाजे के बाहर डंडा लेकर के गेटकीपर बन करके खड़ा हो जाएंगे कि घुसने नहीं देंगे, निकलने नहीं देंगे, तो आपका घर भी नहीं बचेगा, बेडरूम भी नहीं बचेगा। इसलिए समझदारी इस बात में है कि आपसी जो नाराजगी है, आपसी जो वैचारिक मतभेद है, उसको किनारा कीजिए और बस्ती बचाने के लिए इकट्ठा होइए, क्योंकि ये देश हम सबका है। इसीलिए लेफ्ट राइट का जो क्वेश्चन है ना, वो अप्रासंगिक इसलिए हो गया है कि आज आपको वैसे आदमी के साथ सामना करना पड़ रहा है जो हमारे जमाने का गोविंदा है, ड्रेस बदलते रहता है। इसीलिए इस वैचारिक भ्रम में नहीं पड़िए, देश बचाइए, संविधान बचाइए, यही हमारा लक्ष्य है। सिद्धार्थ फ्रॉम AN9, सिद्धार्थ प्लीज गो अहेड एंड आस्क। सिद्धार्थ सवाल पूछिए प्लीज। जिग्नेश जी जवाब देंगे। विपक्ष का चेहरा तो मीडिया भी होना चाहिए। विपक्ष का चेहरा वो तमाम लोग होना चाहिए जो आइडिया ऑफ इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। पीरियड। थैंक यू। आई हैव टू सी, इट्स बीन ओवर एन आवर। बहुत सारे साथी अलग अलग दोनों से बात करना चाहते हैं। आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। थैंक यू सो मच।